In the next 1 hour, I have attended this international workshop of nonviolent communication and drama triangle in life by Marshall Rosenberg. And in this, we will be getting into some of the details of how everyone in this world is in this drama triangle. Please understand, how many of you are able to see my slides? Please raise your hands and you can use the chat box. हर आदमी को अपने जीवन में कभी ना कभी ये ड्रामा ट्रायंगल होता ही है, ये अनिवार्य है। दुखालयम अश्वाश्वतम जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, you know that this material world is a place of misery, and by the experience which we get here, we need to come out of this drama triangle and move towards God and spirituality. हर आदमी के जीवन में जब प्रॉब्लम आता है, you know, he becomes a victim. And when he becomes a victim, there is a person who makes him the victim always, and he is victimized by that person. और वो कुछ नहीं बोल सकता है वो आदमी को. And then comes in a rescuer. और वो rescuer आता है और उस ड्रामा ट्रायंगल में घुस के वो दोस्ती बढ़ाता है उस victim के साथ, और इससे एक विशियस साइकिल बनते जाता है. And today we'll be seeing how we can get out of all these things. This is a short introduction of mine, which I think I have covered many times. This is one of the classes I took in a medical college for all the doctors, professors, head of the departments on meditation, mind control, Bhagavad Gita. This is an engineering college for 5,000 students on the art of mind control and personality development. And this is my story of what I was and what I am now. And I'm still in the process of self-improvement at a mental, physical, emotional, and spiritual levels. The four wheels in the car: PQ, EQ, IQ, and SQ. So we need to understand a very important thing. The love is the most misunderstood word in this world. Atmo Indriya Priti Vangcha Tare Bole Kama, Krishna Indriya Priti Vangcha Dhare Prema Nama. So right now, I'll make it very simple. There are two types of love. One is hormonal love and one is true love, right? All of you are understanding? This is hormonal love and this is true love. And after I explain this, I know this group, all the members in this group are very closely attached to each other. We don't judge each other. We only try to observe our own self and observe others without any evaluation, because all of us are in this learning process. तो हम लोग सबको कभी ना कभी वो हुआ है लाइफ में, when we were young, वो पहली बार जब हम मिले, हो गए प्यार के शुरू सिलसिले. ये हार्मोनल लव है. ये वो लड़का लड़की का प्रेम है. वो पहली बार या पहली बार तुम्हें देखा तो ऐसा लगा. Now please understand, this is hormonal love. I am using very scientific language here. Okay, I'm not using any spiritual paradigm here. जो हार्मोनल लव होता है, जो पहली बार देखते ही होता है, जिसमें कामदेव का वाण चलता है ना, उसमें क्या होता है? यू डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप फॉर सेल्फ एस्टीम. यू टेक मोर फ्रॉम द रिलेशनशिप देन यू गिव. The relationship drains you emotionally, psychologically, and drains you of your physical energy. बार बार वेट करते हैं, उसने मेरा मैसेज पढ़ा कि नहीं, उसने रिप्लाई करा कि नहीं, वो मेरे तरफ देख रहा है कि दूसरे के तरफ देख रहा है, वो मुझे समय दे रहा है कि किसी और को समय दे रहा है. We are very possessive and stingy about that relationship. You are jealous of other person's separate activities. You want all the time that person to be under you. You can only think of that other person and no one else. You are afraid that the other person could lose interest in you. हमारे अंदर ये जो व्याकुलता और आकुलता है, ये हार्मोनल लव में क्या होता है? कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा. और जैसे ही वो आता है, कब जाएगी, कब चली जाएगी, मुझे डर लग रहा है, किसी और को तो देख नहीं रही है, तो हैप्पीनेस कहाँ है, राइट? So we are afraid that the other person will lose interest in you. You feel a deep need clinging and grasping for them. You are addicted to the drama. हाँ, ये ड्रामा में हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं. और तीन चीज हमारा ट्रिगर करता है इस इमोशनल हार्मोनल लव को, जो एक्चुअली लव है ही नहीं, इट इज लस्ट. ओके, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, यू नेवर हियर मी, यू ऑलवेज मेक मी रॉन्ग.
You are playing out your wounded inner child or your parents' beliefs and patterns on your so-called partner. It is more of a need-based relationship, and they feel they own the other person, are entangled with each other. ये जो हार्मोनल लव होता है, इसमें पोसेसिव मेंटालिटी होती है, इसमें डर होता है, कब छोड़ के जाएगा, कब छोड़ के जाएगी, मुझे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, और फिर हमेशा लगता है ये मेरे साथ रहे, मेरे ये करे, और ये ज्यादा दिन टिकता ही नहीं है. बट what are the characteristics of true love? You regard that both of you are individuals separately apart, yet you are with each other. मतलब हम लोग एक दूसरे के इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करते हैं, एंड यू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नाइदर इज परफेक्ट. और वो जो हार्मोनल लव है ना, हम लोग परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरे आदमी से भी परफेक्शन की कोशिश करते हैं. The relationship still gives each person the energy to devote to other aspects of life. मतलब पूरा टाइम उसको लेके हम लोग एनामर्ड नहीं होते, बट दूसरा चीज को भी लाइफ में बैलेंस करते हैं. Each of you continue to grow as independent human beings. आप उसको फ्रीडम देते हैं, वो आपको फ्रीडम देता है. Each feels a responsibility to each other's well-being. एक दूसरे के बारे में वो डीपली सोचता है. वो ये नहीं सोचता है कि मुझे इस आदमी से क्या फायदा मिलेगा, वो उस दूसरे आदमी के वेलबींग के बारे में भी सोचता है. Both of you experience the joy in giving as well as receiving. ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षट विधि प्रीति लक्षणम. आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम. जब मैं अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों के बॉडी को, माइंड को, आत्मा को एक्सप्लॉइट करता हूं, उसको काम वासना बोलते हैं. और जब आप अपने आप को देते हैं दूसरे के खुशी के लिए, परमात्मा के खुशी के लिए, उसको शुद्ध प्रेम बोलते हैं. ईच ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी बाइंड्स यू टुगेदर. ईच अंडरस्टैंड्स एंड एक्सेप्ट्स द वर्ल्ड एंड रियलिटीज ऑफ अदर. यू बोथ रिकॉग्नाइज एंड ऑनर आपकी खुद की नीड्स और पार्टनर की नीड्स. यू कैन नॉट फुलफिल एनी अदर पर्सन्स नीड्स. You can just help the other person identify his needs so that he can fulfill his needs better. आप इस दुनिया में किसी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते. आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि उस व्यक्ति को सेल्फ अवेयर कर सकते हो कि उसकी एक्चुअल जरूरत क्या है, और उसको स्वावलंबी बना सकते हो टू फुलफिल हिज ओन नीड्स. An actual leader will not make others dependent on him. An actual lover will not make his partner dependent on him, but an actual leader and lover will make that person stand on his own legs, and he will make leaders and not followers. Mind my words, these are very deep. मैंने बहुत जूते घिस के ये सब सीखा है. मैं आपको बोल रहा हूं, I hope you understand the gravity of my words. अगर कोई आदमी सोच रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे खुश कर देगा, सो इंटरनेशनल ट्रेनर, यू नो, लविंग व्हाट इज का ऑथर कौन है? कैन एनीवन टेल मी? लेट मी सी रियलिटी चेक. लविंग व्हाट इज का ऑथर कौन है? हिमांक, आर यू देयर? लक्ष्मी माता जी? बायरन केटी. ओके, इंटरनेशनल बायरन केटी. वेरी गुड हिमांक, आई एम लविंग इट. बायरन केटी बोलती है, इट्स नॉट योर जॉब टू लव मी, इट्स माइन. It's not your job to love me. If any person is expecting that the other person will fulfill his love tank, I'll take this 5 love language later, he's in big illusion, because expectation minus reality is equal to frustration. No one can fulfill your needs. They can help you identify it. You and God can only fulfill your needs. Each understand and accepts the world and realities for other. You both recognize and honor your own needs and those of the partner. You are not playing out roles as you are aware of it. It is a want-based relationship, not a need-based relationship, and you love to share and care.
देखिए, अगर आपके राइट साइड ऑफ द बॉडी में पेन हो रहा है, यानी आपका मेल एनर्जी डिसबैलेंस्ड है, बार बार आपके राइट साइड में चोट लग रहा है, यानी आपका मेल एनर्जी डिसबैलेंस्ड है। अगर आपके लेफ्ट साइड में बार बार बीमारी हो रही है, इट इज डिसबैलेंस इन द फीमेल एनर्जी। शिवा एंड शक्ति, राधा एंड कृष्णा, शंकर एंड पार्वती, और काल भैरव और काली। If your soul is completely satisfied, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। एक माता का प्रेम अपने बच्चे के लिए जो होता है, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रू लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट उसमें भी दो दोष है, मेरा बच्चा को ही वो ज्यादा ध्यान देती है, दूसरे बच्चे को नहीं देती है। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, दैट वो एक्सपेक्टेशन रखती है, विच इज नॉट रॉन्ग, कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। लेकिन हमारा दूसरों के साथ ट्रू लव है या हार्मोनल लव है, ये चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि अगर एक पेड़ में फूल हुआ है, उस फूल को पानी देने में हमें ज्यादा खुशी हो रही है, या वो फूल को उठा के उसका सुगंध लेने में ज्यादा खुशी हो रही है। अगर उस फूल को उखाड़ के आपको सुगंध लेने में ज्यादा खुशी हो रही है, दैट मीन्स इट इज इमोशनल एंड इट इज हार्मोनल लव। लेकिन उस पौधे को पानी देने में, उस फूल को बड़ा होने में अगर ज्यादा खुशी हो रही है, तो वो ट्रू लव है। ट्रू लव में देने में आनंद है और हार्मोनल लव में लेने में आनंद है। ओके, सो आई होप आई हैव गिवन अ लिटिल बिट ऑफ दिस। How many of you are with me till now? Please type WM, because this is a deep topic. This is a deep topic. Okay. Okay. Thank you. Thank you. So many people sending with me. हर आदमी के अंदर एक मेल एनर्जी होता है और एक स्पेक्ट्रम होता है। कोई 100% मेल नहीं होता या कोई 100% फीमेल नहीं होता। जो मेल एनर्जी होता है वो लीनियर थिंकिंग करता है, 1+1 2, 2+3 5, 5+6। लेकिन जो फीमेल एनर्जी होता है वो क्रॉस थिंकिंग करता है, क्रॉस थिंकिंग। हाँ, वो डिटेल्स में घुस जाएगा। जो मेल होता है वो स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेता है, लेकिन फीमेल दुर्गा देवी की तरह हो सकती है, वो मल्टीटास्किंग कर सकती है। एक मेल को सिर्फ लॉजिक और एनालिसिस समझ में आता है, लेकिन फीमेल को इमोशन और इंट्यूशन समझ में आता है। मेल कभी नर्चर नहीं कर सकता, जैसे एक माता पेट में 9 महीने के लिए बच्चे को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली नर्चर करती है। मेल क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट कर सकता है, इंप्लीमेंटर। मेल एनर्जी फाइनेंस करता है और फीमेल एनर्जी मल्टीप्लाई करता है। मेल एनर्जी पितृ वाला एनर्जी है और फीमेल एनर्जी मातृ वाला एनर्जी है। मेल एनर्जी दिमाग से चलता है, फीमेल एनर्जी दिल से चलता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो लड़का है लेकिन ये तो बड़ा फीमेल के तरह है, क्योंकि उसमें फीमेल एनर्जी ज्यादा है पिछले जन्मों के कारण। इसको बहुत डीपली समझना होगा। अगर एक लेडी बहुत ज्यादा अपने पति से अटैच्ड है, अगले जन्म में वो मेल बन जाएगी और पत्नी फीमेल बन जाएगी, बिकॉज दे विल डेवलप दैट स्टेट। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मेल एनर्जी ज्यादा रियलिटी में चलता है और फीमेल एनर्जी इमेजिनेशन में चलता है। उनको वैसे ही बनाया गया है, भगवान ने उनको वैसे ही बनाया है। मेल एनर्जी का फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बाहुबली ज्यादा होता है, लेकिन फीमेल का इमोशनल एंड्योरेंस ज्यादा होता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबका अपना अपना रिस्पेक्ट है। जैसे शिव का रिस्पेक्ट है वैसे देवी का रिस्पेक्ट है, जैसे विष्णु का रिस्पेक्ट है वैसे लक्ष्मी के रिस्पेक्ट है। लक्ष्मी के बिना विष्णु इज इनकम्प्लीट और विष्णु के बिना लक्ष्मी इज इनकम्प्लीट। Male is giver energy, female is receiver energy. Male is protection and guarding, female is holding. Male energy is clear and directed, female energy is secretive hai. It is all about outside, even the bodily structure, the reproductive organs. Male energy is outside and female energy is inside. Male energy is about breathing out and female energy is about breathing in. चलिए अब ये फीलिंग्स को बहुत केयरफुली देखिए, है ना? इस फीलिंग्स को बहुत केयरफुली देखिए। राइट नाउ आप लोग को चैट बॉक्स में लिखना है कि आप क्या फील कर रहे हैं। L फॉर लव्ड, H फॉर हैप्पी, C फॉर कंटेंट, S फॉर स्लीपी, सैड,
Heartbroken, stressed, worried, angry, ecstatic, warm, affectionate, shocked, anxious, hesitant, confused, depressed, betrayed, intelligent, lucky, confident, skeptical, scared, helpless, disappointed, irritated, explosive. Oh my God, I've become like a volcano now. I can't take it. होता है, जीवन में होता है. Accepted, hopeful, playful, hopeless, invisible, frustrated, powerless, disgusted. देखिए, what is meditation? I'll tell you, meditation in one line is from thinking to feeling to being. If we are constantly in the sankalp and vikalp and we are hovering in the helicopter of sankalp and vikalp, तो हम लोग का लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा. Let us calm down. Let us consolidate our energy. Let us do cord cutting and feel our feeling within. And consolidate that power of the energy of feelings within our heart. And let us use this nuclear energy for self-growth and contribution and not dissipate it to people जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है. कोई आके कुछ बोल दिया, I give him a part of my feelings energy. कोई आके कुछ कर दिया, I give him the part of my feelings energy and I deplete myself from energy. It's not about health, it's about energy. Right? तो ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया. Yes, we will be having a separate workshop on cord cutting. Okay? Right? So please understand that these are the feelings. कम से कम पता तो चले. Your eyes cannot see what your mind doesn't know. Your heart cannot feel what your awareness doesn't know. So that is why I have given this spectrum in such a way ताकि ये emojis जो हम लोग दूसरों को forward करते हैं ना, हम अपने आप को भी इससे समझे. And meditation means from thinking of thoughts to feeling of emotions to being connected with the Supreme, our existential reality. That is meditation. Right. Ab. Couples communication and communication between two people. Before I go to this, I will just say something in the drama triangle and then come to this because many people are new. What is drama triangle? I'll give you a simple example. Example के बिना समझ में नहीं आता है. सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त था, मंद मंद सुगंधित हवा चल रही थी, कोयल बोल रहे थे कुहू कुहू, और अचानक से एक आवाज आई. एंड व्हाट वाज द आवाज? द लेडी ऑफ द हाउस सेज, इस घर में किसी को कुछ समझ में नहीं आता क्या? हाँ, कि अभी बच्चों को जाना है. 10 बार से मैं बोल रही हूं कि ब्रेड लाना होता है. मैं तो भाई पागल हो गई हूं. अब मुझे एकदम छुटकारा चाहिए. आई वॉन्ट टू गो एंड टेक अ ब्रेक इन द हिमालयस. हाँ, जैसे ही ऐसा हल्ला हुआ, एक साइड से उसके बच्चे आ गए, एक साइड से बीवी आ गई, बहू आ गई, दूसरे साइड से बच्चे आ गए. क्या हुआ क्या हुआ? आई डोंट नो, आई वांट टू जस्ट टेक अ लीव. नाउ शी इज क्रिएटिंग ड्रामा. राइट? क्या लाना है? एक ब्रेड लाना है. गलती से रात को ब्रेड लाना छूट गया. बट नाउ कैन एनीवन टाइप इन द चैट बॉक्स कि उसका एक्चुअल इंटेंशन क्या है? डज शी वांट द ब्रेड or she wants something for herself? Please type in the chat box. Let me see. हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है with this example, है ना? Lovely, lovely. हाँ, I want more things to come up. She needs attention. Attention के साथ उसको क्या चाहिए? एक ब्रेड को लेके, okay, she is lacking love. कोई उससे बात करने वाला नहीं है. Self importance, lovely, lovely, lovely. Care, lovely. Go ahead. हाँ, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं. हाँ, बार बार और 1000 बार बोलता हूं. मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूं और मेरे आंखों में ना, I am a professor, head of the department, and if only I get an X-ray vision, I would look only at skeletons and not the bodies. Similarly, I'm telling people again and again that if they could develop only one quality to understand the need of the other person, and as the formula goes, it is OFNR, observation, feelings, needs and requests. तो जब वो ड्रामा कर रही है, अरे यार कोई मेरे को समझ नहीं रहा है, 10,000 बार बोल चुकी हूं, she doesn't need bread. She needs attention. So उसको जाके बोलना है, oh, I really understand, extremely sorry. हाँ, I'll just make the arrangement for the bread. लेकिन अगर आप सिर्फ ब्रेड ले आए तो अगले बार भी ड्रामा ट्रायंगल चालू हो जाएगा.
जैसे ही ड्रामा ट्रायंगल चालू होगा तो एक आदमी बन जाएगा उसमें, कौन? एक है रेस्क्यूअर, एक है परसिक्यूटर और एक है विक्टिम। ठीक है, एंड आई विल टेल यू हाउ इट विल हैपन। सबसे पहले मैं विक्टिम के बारे में बात करूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? यहां पे आप लोग प्लीज ध्यान से समझिए। कई बार हम लोग विक्टिम बनते हैं, राइट? जो परसिक्यूटर है वो दूसरों को सप्रेस करता है, दूसरों को जज करता है, दूसरों पे जजमेंट चलाता है, थ्रेटन करता है, और उसके डर से बेचारा विक्टिम कुछ बोलता ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है कि देयर आर सोशल नॉर्म्स, वन पर्सन इज द विक्टिम एंड अदर पर्सन इज द परसिक्यूटर, लेकिन विक्टिम परसिक्यूटर को कुछ क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि तुरंत परसिक्यूटर धमकी देता है, छोड़ दे मुझे, चल जा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे, हिम्मत है तो निकल ले। अब बेचारा विक्टिम को हिम्मत नहीं है, वो किससे बोलेगा, क्या बोलेगा? तब वो अपना फोन उठाता है और सहेली को वो बोलती है, पता है मेरे पति ने ऐसा बोला। एंड देन कम्स द ही मैन, द स्पाइडरमैन, ही इज कॉल्ड द रेस्क्यूअर। ओके, रेस्क्यूअर का क्या काम है? मेक्स एंड कीप्स द अदर पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम, doesn't acknowledge what the other person is capable of, make oneself very important for others by doing everything for them। आप लोग सबको ये समझ में आ रहा है? रेस्क्यूअर का क्या नीड्स है? कैन एनीवन टेल मी? रेस्क्यूअर जो आके तुरंत उस विक्टिम को हेल्प कर देता है, उसका क्या नीड है? कैन एनीवन टेल मी? दिस इज वेरी डीप। हाँ, इंपॉर्टेंस, वेरी गुड। नीड फॉर कंट्रीब्यूशन उसका पूरा नहीं हो रहा है। नीड फॉर कंट्रीब्यूशन, द बिगेस्ट नीड हर आत्मा का दो है, जो मैं 1000 बार बोल चुका हूं, नीड फॉर सिक्योरिटी एंड नीड फॉर कनेक्शन। हर आत्मा का जो भी इस ब्रह्मांड में आया है उसका दो नीड्स है, नीड फॉर कनेक्शन एंड नीड फॉर सिक्योरिटी, विच कैन ओनली बी डन बाय गॉड, but the perverted reflection of that is sought out in this material world, यहां के लोगों पे। And when we distort this need from God to people of this world, when we look out for connection for people in this world and look out for security in them, then is when life starts teaching us lessons, as Bhagavad Gita says, and slowly and slowly and slowly we know the reality of life। Let me take one more example। पहले मैं एग्जाम्पल लूंगा तो ये क्लियर होगा, ओके? क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलता है when they get into the drama triangle। Okay, let me just go and take the examples। Case study of my friend's drama triangle। When my friends elderly parents were fighting, जब मेरे दोस्त के elderly माँ बाप झगड़ रहे थे, तो वो दोस्त उन दोनों के ड्रामा ट्रायंगल में घुस जाता था। यानी एक बेटा माँ बाप के झगड़े के बीच में घुस जाता था और एक आदमी को रेस्क्यू करता था, या माँ को या बाप को। दिस वुड एड फ्यूल टू फायर, लाइक टेकिंग साइड्स। अगर मम्मी के साइड में बचाया तो इसकी बैंड बजेगी, और पापा के साइड में बजाया तो उसकी बैंड बजेगी। टिपिकल एग्जाम्पल जो एक हस्बैंड के साथ होता है, एंड आई विल कम टू वाइफ्स। हाँ, आई एम नॉट टेकिंग साइड्स। एक लड़के की शादी होती है और अचानक से उसके लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है, तो उसके माता को इनसिक्योरिटी होने लगता है, हस्बैंड के माता जी को इनसिक्योरिटी होने लगता है कि अरे बाप रे, आजकल तो ये मेरे बेटे को मेरे से दूर लेके जाती है। तो शी विल स्टार्ट क्रिएटिंग ड्रामा इन लाइफ, जिसको टिपिकल सास बहू का सीरियल और एकता कपूर ने काफी अच्छी तरह से उस पे फाइनेंशियल मॉडल बना दिया। अब वो क्या करेगी? वो कुछ ड्रामा ऐसा करेगी जिससे वो अटेंशन किसका खींचेगी? अपने बेटे का कि बहू का? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, बेटा और बहू। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, BETA, वेरी गुड, बेटा का। सो व्हाट शी विल डू, आई जस्ट गिव सम एग्जांपल। हाँ, और मैं सबका एग्जांपल लेने वाला हूं, एग्जांपल के बिना समझ में नहीं आएगा। एक दिन जब उसका बेटा पूरा दिन काम करके लौटा होगा
है ना, और उसकी वाइफ उस दिन पार्टी में गई हुई होगी, यानी बहू, तो वो ऐसे बैठ जाएगी रूम के बीच में। कैसे? ऐसे। अब बेटा बेचारा रहेगा, मम्मी मम्मी मम्मी, एंड शी विल नॉट आंसर। मम्मी पानी दो ना, देन शी विल स्टार्ट। अब बेटे को शौक लगेगा, ओ माय गॉड व्हाट नॉनसेंस, क्या हो गया, मैंने कुछ बोल दिया क्या? तुमको बोलने के लिए बचा ही क्या है, सब तो बोल के चली गई वो। ओ माय गॉड। अब क्या हो रहा है? आप लोगों ने मृदंग देखा है? मृदंग, हाँ, ढोल। ढोल एक साइड से डंग 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 बजता है, अब वो तुरंत फोन करके अपनी वाइफ पे चिल्लाना शुरू करेगा, ओ माय गॉड यू हैव इंसल्टेड माय मदर, हाउ कैन यू डू दिस, और वो बेचारी आसमान से गिर रही है, बट आई हैव नॉट डन एनीथिंग, अरे चुप कर तू। अब तो वो कुछ बोली नहीं, बिकॉज शी वॉज इन अ किटी पार्टी, एंड एट नाइट व्हेन शी रिटर्न्स, ओ माय गॉड, फ्रॉम राधा रानी शी बिकम्स रुद्र काली। और रात को उसकी शुद्धि जब होगी, तो अब मृदंग दोनों साइड से बजने लगा। कैन एनीवन टेल मी, इसमें वो मम्मी क्या है, वो बेटा क्या है, और वो वाइफ क्या है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप इन द chat box. Drama triangle has started in a very very big way. Okay, अब इसी का दूसरा रूप है, where the wife can become a drama triangle or the husband can become the drama triangle, and the only purpose is attention, love, care, जिसके कारण a huge drama is created, and खोदा पहाड़ निकली चुहिया. Many times when my parents would fight, I can be very vulnerable and openly tell, many times when my parents would fight, you know, and my mother would start crying and all this, तो मैं जाके पापा को मस्त सुना के आ जाता था. Oh my God, huh? And then my mother would be very happy and father would become silent. After many many years, at one point of time, I realized कि पापा की भी गलती हर बार नहीं होती थी. Okay, and what used to finally happen, मुझे दोनों से लताड़ पड़ता था 2 दिन बाद. हाँ, when my mother would, मम्मी का पापा से बन जाता था, कहते थे मियाँ बीबी के झगड़े में एनीवे नहीं पड़ना चाहिए, कबाब में हड्डी, और दोनों साइड से मेरे को अच्छी तरह लात पड़ती थी. And thank you very much. I'm really appreciating that all of you are understanding. और आप लोग ये बात सोच के कभी मत हंसिएगा, अरे वाह उसका ड्रामा ट्रायंगल उसका, क्योंकि सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? किसी आदमी को समझ में नहीं आता उसका जो ड्रामा ट्रायंगल राइट नाउ लाइफ में चल रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा कि संसार की सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, एंड युधिष्ठिर ने बोला, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम. हर व्यक्ति को पता है कि एक दिन उसको जाना है, लेकिन कोई ये नहीं फील करता कि मेरा भी नंबर आ सकता है. सिमिलरली इस ड्रामा ट्रायंगल का स्टोरी सुन के हम लोग को दूसरे लोगों की बातों पे हंसी आती है, लेकिन हम खुद भूल जाते हैं आई एम ऑल्सो हेविली इन्वॉल्व इन अ ड्रामा ट्रायंगल. कुछ चिड़िया गा रही थी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा हमें पकड़ेगा ले जाएगा, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा हमें पकड़ेगा ले आएगा, और ऐसे गाते गाते शिकारी आया जाल बिछाया उन्हें पकड़ा और ले गया. मैं आप लोग सबको बता रहा था, आई वॉज इन पुणे, इट वॉज अ मॉनसून टाइम, और मैं बाइक चलाते हुए जा रहा था, तो अचानक से बारिश हो गई, तो मैं साइड में आ गया. जब बारिश हो गई मैं साइड में आ गया, और बड़े बड़े ट्रेलर ट्रक्स चल रहे थे पुणे सतारा हाईवे में, एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं देख रहा हूं कि सारे बाइक्स आके एक पॉइंट पे स्लिप हो रहे हैं, और मैं हंसने लगा. हाँ, और मेरे दोस्त को बोला देखो इन लोगों को बाइक चलाना भी नहीं आता, कैसे पागल की तरह स्लिप हो रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली सम ऑयल हैड लीक्ड फ्रॉम द ऑयल टैंकर, एंड आई वाज गोइंग टुवर्ड्स लोनावला, माय फ्रेंड वाज सिटिंग इन माय बाइक, and you know what happened? I was the next person who slipped from the bike at that very point. हाँ? और जब मैं गिरा बाइक से, तब वहां पुणे सतारा हाईवे में जो बगल में दोस्त थे वो हंसने लगे, अरे देखो कैसे गिर रहा है. लाइफ इज वेरी फनी, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. जो लोग दूसरों को बोलते शुगर हो जाएगा शुगर हो जाएगा, बड़े शुगर से बचो, एक पॉइंट आता है जब उनको शुगर हो जाता है. इट्स वेरी फनी, राइट? Let me take one more case study of drama triangle in life. My friend used to take in drama right from childhood and used to get prizes slowly when he started loving the drama. He loved the drama because there was need of importance from outside.
What should he do? He should make himself feel important without involving others at the soul level. तो जब हमारा नीड फॉर इंपॉर्टेंस, देखिए हर सोल को नीड फॉर कनेक्शन चाहिए, and the greatest connection is the connection with your own self. That happens only when we are in a high degree of self-awareness. And when you are available for your own self, you give the freedom to others to be available for themselves, and that is the time when real love grows in. Okay, let me see if I have some more examples, and then yeah, okay, this is one more example from that book. I am feeling low because of my mother-in-law. मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मेरे सास के कारण. My feeling low has got associated with this person. यानी जब भी मैं अपने सास को देखता हूं मुझे भयानक गुस्सा आता है, मुझे ना मन करता है ना, I just run away from that place. How does a woman have so much power that she can make me feel low? This is just a feeling. This feeling does not define me, and neither does it define her. The moment you accept, देखिए, mind the words, moment you accept and express your emotions, you become free from the whole energy of emotion. ड्रामा ट्रायंगल से कैसे निकलना है? एक्सप्रेस कीजिए, इमोशन को अंदर में फील कीजिए, और आप अपने आप को उस इमोशन से सेपरेट देखिए एज दृष्टा भाव. एकार्ट टोले इन हिज वेरी ब्यूटीफुल बुक ऑन साइलेंस, ही सेज दैट एंगर को देखिए कि एंगर आ रहा है, बढ़ रहा है, and if you don't get involved with the anger as a spirit soul drashta, you just witness and see that angry energy coming, taking you over and going, it goes. But we say I am angry. Rather than saying I am angry, it is better to say I am feeling angry, because agamo apainu anitya, in Bhagavad Gita it is said that the feeling will come, the feeling will stay, and the feeling will go. Wherever attention goes, energy flows. उस फीलिंग को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, नहीं तो आप उस फीलिंग में अटक जाएंगे. Now, coming to a very important topic जो मैं अभी आप लोग से डिस्कस करूंगा. Just give me 2 minutes, क्योंकि कुछ लोग नए हैं, so that's why I'm going a bit slow. देखिए, please understand this very deep thing. When two people are in conflict, you have no business there, because you put so much energy, you have no energy for yourself. You are fully, totally drained out without taking permission. ध्यान से सुनिए मेरी बात को. दो जन झगड़ रहे हैं ना, अंदर मत घुसिए जब तक दोनों आपको परमिशन नहीं देते हैं. अगर आप उस झगड़े में घुसे, आपका एनर्जी ड्रेन हो जाएगा. शास्त्रों के अनुसार भी रूल्स है, ओनली व्हेन द टू पीपल गिव परमिशन यू शुड एंटर योरसेल्फ. ओके, बिफोर आई गो इनटू द सेल्फ लव, मैं आप लोग को गुड गर्ल और गुड बॉय सिंड्रोम के बारे में बता दूं. हर व्यक्ति इस सिंड्रोम से ग्रसित है ना? क्योंकि हम लोगों को किसी ने बोल दिया बचपन में, यू आर अ नाइस गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल, सच अ गुड गर्ल. पेरेंट्स नहीं बोलते हैं हाँ बच्चे को, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ नाइस गर्ल. तो ये हमारे अंदर में गुड गर्ल और गुड बॉय सिंड्रोम घुस गया है, और हम लोग ये गुडी गुडी बार्बी डॉल बनना चाहते हैं. यू ऑलवेज वॉन्ट आउटसाइड वैलिडेशन. जिस बच्चे को बार बार बोला गया है गुड बॉय, अच्छा बेटा, मेरा सोना, मेरा राजा, ये करके आप क्या कर रहे हैं? उसको बिगाड़ रहे हैं. आज मैंने एक बहुत अच्छा किताब देखा, हाँ, शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू. हाँ, उस किताब का नाम था अपने बच्चों का प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जड़ आप. हाँ, किताब का नाम था आपके बच्चों के प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जड़ आप. Okay, I was very impressed to read the heading of the book. तो ये जो छोटे बच्चे को हम लोग करते हैं ना, अगर वो बच्चा गिर जाता है जमीन पे, जमीन को मारते हैं, मार 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 उसको, मार मार. अब बच्चे को अगली बार चोट लगती है, जमीन नहीं मिलता है, तो वो दूसरे को मारता है. हाँ, क्योंकि आपने सिखा दिया ना उसको, किसी ना किसी को मारो. अरे भाई, जमीन को क्यों मार रहे हो? बिना मारे भी तो उसको खुश कर सकते हो ना.
आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस? ये डीप इनपुट्स जो हम लोगों ने दे के रखा है, जब भी हम लोग किसी को गुड गर्ल और गुड बॉय सिंड्रोम में डाल देते हैं ना, इसके अंदर में हर्ड मेंटालिटी आ जाता है। एक पंजाबी कपल थे, हम लोग का जो यूथ सेंटर था, हाँ, वो बेचारा, उसका लड़का को इमीडिएटली शादी नहीं करना था, एंड वो बेचारा अपने माँ बाप को समझा समझा के थक गया था। दे आर सबरवाल्स फ्रॉम दिल्ली, है ना। तो जबरदस्ती उन लोगों ने मुझे उस ड्रामा ट्रायंगल में खींच दिया, और उसने मुझे बोला, आप मेरे पापा मम्मी को समझा दीजिए कि मैं शादी करूंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। हाँ, और पता नहीं मेरा कौन सा इमोशन गड़बड़ाया, मैंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, है ना। और मैं चला कन्विंस करने सबरवाल फैमिली दिल्ली कि बेटा को थोड़ा टाइम दे दीजिए, है ना। तो काफी अच्छी अच्छी बातें हुई, और एक पॉइंट पे उसकी माँ बेचारी ऐसे बोली, सौरभ सर, शादी तो करनी है। जब उसने इतना कन्विक्शन से बोला ना, बाप रे, मैं बोला, हाँ माता जी एकदम, अब मैं करूंगा इसकी शादी। हर एनर्जी वाज सो स्ट्रांग दैट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं। हर आदमी को गुडी गुडी बनना है, लिविंग अप टू अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशन एंड फॉल्स। किसने बोला आपको इतना गुडी गुडी बनने का? मुझे एक लेडी बोल रही थी काउंसलिंग सेशन में कि सर पता है, जब मेरी नई नई शादी हुई, मैं फैमिली के लिए कर करके मर गई सर। मैंने बोला, जिंदा तो तुम अभी भी हो। अरे सर, कैसे मैं जिंदा हूं मुझे ही पता है, लेकिन मैं मर गई। सास को खुश करूं कि ससुर को खुश करूं कि हस्बैंड को खुश करूं कि देवर को, किसको करूं? मैं कर करके मर गई सर। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, लेकिन सर कोई खुशी नहीं होता है। मैंने क्या बोला उसको? गिव अ ब्रेक। गुड गर्ल गुड बॉय सिंड्रोम से निकलो। बहुत अच्छी बहू है, बहू रानी है, बहू बहुत अच्छी है। अरे क्या होने वाला है इस अच्छी अच्छी से? आई एम नॉट टेलिंग दैट यू बिकम अ बगावत ओवर देयर, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड। बट एट द सेम टाइम आप लोग इस गुडी गुडी मेंटेलिटी से निकलिए। डॉक्टर सौरभ बहुत अच्छे हैं। अरे नहीं बनना है अच्छा, यू डू द राइट थिंग। अच्छा बुरा छोड़ दो, क्योंकि ये अच्छा सुनने की इच्छा इतनी हो जाती है ना, कि गुड गर्ल गुड बॉय सिंड्रोम में 30-30 साल तक लोग सफर करते हैं ड्रामा ट्रायंगल में। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि स्केर्सिटी इज द फल्क्रम ऑन विच रिलेशनशिप थ्राइव्स। गोल्डन स्टेटमेंट, प्लीज टाइप GS, गोल्डन स्टेटमेंट। स्केर्सिटी इज द फल्क्रम ऑन विच रिलेशनशिप थ्राइव्स। एक ग्रुप मेंबर मुझे बोल रहा था, सर आपने ये गजब का फॉर्मूला दे दिया। मैंने बोला, कौन सा फॉर्मूला? बोला, सर आटा, आटा के तरफ पिसो मत। मैंने बोला, क्या फॉर्मूला? मैं तो नहीं दिया ऐसा फॉर्मूला। बोले, सर मैंने बना लिया आपके फॉर्मूला से फॉर्मूला। मैंने बोला, बता दो मुझे भी। सर मैंने ये फॉर्मूला बनाया, ATA, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी। ATA, आटा मत बनो, आटा मत बनो, पिस जाओगे, या पिस के आटा बन जाओगे। चाहे आपका कलीग हो, आपका दोस्त हो, भगवान को छोड़ के, गुरु को छोड़ के किसी के सामने ATA मत रखो। यू विल सफर ट्रिमेंडसली माय डियर फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पे कोई शुद्ध भक्त नहीं है, कोई मीराबाई नहीं है, कोई रसिकलाल नहीं है, कोई सूरदास नहीं है। फुल आपको एक्सप्लॉइट करके इस तरीके से रगड़ देंगे कि आपको लगेगा मैं तो गुड बॉय गुड गर्ल सिंड्रोम में ही रह गई। अरे ये गुड बॉय और गुड गर्ल रह के कर ही क्या लिया है तुमने लाइफ में? किसके सामने गुड बन रहे हो? किसके लिए गुड बन रहे हो भाई? आर यू गेटिंग मी? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग मी? प्लीज टाइप GM इन द चैट बॉक्स। GM, getting me? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं एक डिस्कशन यहां करूंगा, हाउ टू लव योर सेल्फ, क्योंकि दिस विल ब्रेक द ड्रामा ट्रायंगल। आई इज अ इनवर्ड जर्नी। किसी का ठेका मत लो। बी responsible to people, don't be responsible for people. I is a inward journey. Change only yourself. This is your life. No more excuses. Yes, very very important. ये स्टेटमेंट को मैं हर दिन अपने आप को 10 बार बोलता हूं, क्योंकि मैं भी बहने लगता हूं। वी आर इमोशनल बींग्स।
बी रेस्पॉन्सिबल टू पीपल, डोंट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। मैं एग्जाम्पल देता हूं जो मैं बार बार देता हूं। मेरी मम्मी का तबीयत खराब हो गया, घुटने में दर्द होने लगा, और वो फोन करके बोली, हाय बेटा बहुत तकलीफ है, मैं नहीं चल पा रही हूं, मैं क्या करूं। तो मैं तुरंत दवाई निकाला और मैं तुरंत भाग भाग के गया और मैं बोला, मम्मी ये लगा लो। मैं नहीं लगाती। ओ माय गॉड, आई गॉट द शॉक ऑफ माय लाइफ। तो मैं बोला, क्यों नहीं लगाती है, ये सब काम वाम नहीं करता, ये सब फालतूगिरी मुझे पसंद नहीं है। ओ माय गॉड। अब मैं तो थोड़ी देर के लिए समझ ही नहीं पाया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा बात किया, सिंपैथी दिया, एम्पैथी दिया, एलोपैथी नहीं दिया, होम्योपैथी दिया। उसके बाद मैंने एक पैथी नहीं दिया था उनको। इस नया पैथी का नाम मैंने रिसेंटली सीखा, रेसिप्रोपैथी। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, रेसिप्रोपैथी, RECIPROPATHY, रेसिप्रोपैथी। ओके, सिर्फ देने से काम नहीं चलेगा, मेल एनर्जी बढ़ जाएगा। सिर्फ लेने से काम नहीं चलेगा, फीमेल एनर्जी बढ़ जाएगा। कितने लोगों को आदत है कि आप लोग किसी से गिफ्ट लेना पसंद नहीं करते हैं, आपको सिर्फ देना आता है। प्रभु जी मुझे लेना नहीं आता, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ लिया नहीं है प्रभु जी, मैंने तो बस दिया है। और कुछ लोग उल्टा होते हैं। हाँ भाई, उनको तो सिर्फ लेना आता है, देना ही नहीं आता है। हाँ, मुझको चांद ला के दो, मुझको तारे ला के दो, मुझको सारे ला के दो, गाड़ी दिला दे, बंगला दिला दे, कम से कम इतना दिला दे। हाँ, यू हर्ड इट। अब इन लोग का दूसरा टाइप का एनर्जी बढ़ जाता है। तो एनर्जी एक्सचेंज मतलब रेसिप्रोपैथी। 5 चीज, ज्ञान का दान, अन्न का दान, श्रम का दान, धन का दान, समय का दान। लोग बोलते प्रभु जी मैं तो किसी से कुछ नहीं लेता हूं, इसमें भी तकलीफ है। और अगर आप कुछ लेते भी नहीं है, इसी में तकलीफ है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने बोला है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षट विधि प्रीति लक्षणम। तो चलिए आप लोग सब बताइए ग्रुप में क्या करना चाहिए, लेना चाहिए या देना चाहिए। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स लेना और देना, क्योंकि अभी जो मैं बोलने वाला हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। संजय writing lena and dena, very good, very good, very good, I'm liking it. Nothing, oh my god, Jaspreet ma'am, you are into some different zone. Okay, I appreciate that everyone is in a different zone. Both okay, abha ma'am, nice. हाँ both, अभी मैं बताऊंगा। हाँ, this is not the answer. हाँ, it is partially the answer, but कैसे खुश रहने का secret I'll tell you. Always remember my dear friends, लेना and देना। देखिए अब मैं जो बोलने वाला हूं, आई नीड टू स्टॉप द स्लाइड शेयरिंग, है ना।